اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کا رہنے والا ایک سید اپنی زوجہ، بیٹیوں اور بیٹی کو ہمراہ لے کر ایران زیارات کے لیے آیا۔ مشہد مقدس، نیشا پور، تہران اور علاوہ مقامات مقدسہ کی زیارات کر کے وہ سید اپنے اہل و عیال کے ساتھ قم شہر میں معظمہ بی بی معصومہ قم صلوات اللہ علیہا کے حرم پاک کی زیارت کرنے آیا اور چند دن قم میں قیام پذیر رہا۔ انہیں قم شہر میں آ کر معلوم ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے قم شہر سے کچھ دور شہنشاہ معظم امام زمانہ کے حکم پر مسجد جمکران تعمیر ہوئی ہے، جس کی زیارت کرنے سے زائرین کو بہت ثواب اور فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سید اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد جمکران کی زیارت کرنے چلا گیا۔ وہاں جا کر انہیں مسجد جمکران کے منتظمین نے بتایا کہ یہ مسجد جمکران شہنشاہ معظم امام زمانہ نے خود تعمیر کروائی ہے اور یہ انہی پاک ذات کے نام پاک سے منسوب ہے۔ جو مومن اس مسجد جمکران میں 40 بدھ کی رات شب بیداری کرے گا اور اپنے زمانہ کے امام کی زیارت کے اعمال بجا لائے گا تو اسے ضرور ہی اپنے امام زمانہ کی بالمشافہ زیارات کا شرف حاصل ہوگا۔ اور بہت سے خوش قسمت مومنین اس مسجد میں شب بیداری اور اعمال کر کے شہنشاہ معظم امام زمانہ کے بالمشافہ زیارات کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ وہ عراق کا سید مسجد جمکران کی زیارت کر کے جب واپس جانے لگا تو اس سید کی 14 یا 15 سال کی بیٹی اپنے والد سے کہنے لگی کہ بابا جان، میں مسجد جمکران میں 40 بدھ شب بیداری اور اعمال بجا لا کر شہنشاہ امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر عراق کا وہ سید کہنے لگا کہ بیٹا، دل تو سب کا کرتا ہے اپنے امام زمانہ کی زیارت کرے، مگر کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں۔ یہ 40 بدھ پورے 10 مہینے بنتے ہیں۔ ہم تو کچھ دن کے لیے ایران آئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گھر جا کر اپنا کاروبار بھی سنبھالنا ہے۔ ہم یہاں 10 مہینے قیام نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس سید نے دیکھا تو اس کی بیٹی کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اپنے امام زمانہ کی زیارت کی تمنا میں اپنے والد کی بات سن کر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بیٹی کے آنسو والدین کی کمزوری ہوتے ہیں اور وہ سید زادی تو اپنے امام زمانہ کی محبت میں رو رہی تھی۔ بیٹی کی یہ کیفیت اور نیک جذبہ دیکھ کر وہ سید اپنی بیٹی کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ایران کی تمام زیارات کر چکے تھے۔ اس سید نے اپنی زوجہ اور بیٹیوں کو واپس عراق بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دور میں مسجد جمکران کی تعمیر کو تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ مسجد جمکران زیادہ وسیع نہ تھی اور زائرین کی رہائش کا انتظام بھی نہ تھا۔ رات کو مسجد میں فانوس روشن کیے جاتے تھے۔ مسجد میں 40 بدھ کی رات شب بیداری کرنے کے خواہش مند مومنین قم شہر میں مکان کرائے پر لے کر قیام کرتے اور بدھ کی رات مسجد میں آ جاتے۔ وہ عراق کا سید مسجد جمکران کے خدام سے ملا اور اسے بتایا کہ میں اور میری بیٹی 40 بدھ کی رات شب بیداری اور اعمال زیارات کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد جمکران کے خدام نے سید کا مصلی عمل کرنے والے مردوں کے ساتھ مختص کیا اور اس کی بیٹی کا مصلی مستورات کے ساتھ مختص کیا اور دونوں باپ بیٹی کو اپنا اپنا مصلی دکھا کر بتایا کہ یہ مصلی صرف تمہارے لیے ہیں۔ جب تم بدھ کی شب آؤ گے تو یہ مصلی تمہارے لیے خالی ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ مصلی تمہارے لیے وقف کر دیے ہیں۔ وہ سید اپنا اور اپنی بیٹی کا نام اندراج کروا کر اور مصلی وقف کروا کر اپنی بیٹی کے ساتھ قم چلا گیا اور وہاں اپنے لیے مکان کرائے پر لے کر قیام پذیر ہو گیا۔ منگل کی شام کو دونوں باپ اور بیٹی نے غسل زیارت کیا، کھانا کھا کر مسجد جمکران چلے گئے اور مغربین کی نماز دونوں نے مسجد میں اپنے اپنے مصلی پر ادا کی اور اعمال زیارات امام زمانہ بجا لانے لگے۔ اس سید کی بیٹی سے روایت ہے کہ جب نصف شب ہوئی تو میں اپنے مصلی پر بیٹھ کر شہنشاہ معظم امام زمانہ کی بارگاہ میں رو رو کر استغاثہ اور فریاد کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مسجد جمکران کے تمام فانوس اچانک بجھ گئے، پوری مسجد میں اندھیرا چھا گیا۔ میں
वहाँ अंधेरा छा जाने की वजह से परेशान होने लगी थी कि फिर देखा तो पूरी मस्जिद नूर से जगमगाने लगी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक नूरानी चेहरे वाली कोई अजीम हस्ती मौजूद है। उनकी पाक पेशानी के नूर से पूरी मस्जिद में रोशनी थी। वो सैयदजादी रिवायत करती है कि मैं इस अजीम हस्ती को देखकर अपने मुसल्ले पर उठी और सर झुकाकर अर्ज किया कि आप कौन पाक ज़ात हो। इस अजीम पाक हस्ती ने मुस्कुरा कर फरमाया कि हमारी ज़ियारत कर ले, हम तुम्हारे इमाम ज़माना है। वाज़ेह है कि शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना भरी मस्जिद में सिर्फ इसी सैयदजादी को ज़ियारत करवा रहे थे और बाकी सब की नजरों पर तसर्रुफ फरमाकर उनसे पोशीदा थे। वो खुशकिस्मत और खुश नसीब सैयदजादी रवायत करती है कि मेरे इमाम ज़माना ने अपना तारुफ करवाया तो मैंने इस पाक ज़ात के कदमों पर अपना सर रख दिया। इमाम ज़माना के नूरानी दस्त मुबारक चूमने लगी और अर्ज किया कि आप जनाब ने मुझ पर इतना करम किया कि पहली बुध की शब भी मुझे ज़ियारत का शर्फ बख्शा। इमाम ज़माना ने फरमाया कि हमें तुम्हारी मजबूरियां मालूम हैं। हम इस वक्त देख रहे थे जब तुम अपने वालिद के सामने रो रही थी। तुम्हारी हमने इस कदर वल्लाना मोहब्बत देख कर तुम्हारी आरज़ू पूरी फरमा दी। सैयदजादी से रिवायत है कि मैंने अपने इमाम ज़माना का चेहरा मुबारक की अच्छी तरह ज़ियारत कर ली। चंद लम्हे बाद वो पाक ज़ात मेरी नजरों से गायब हो गए। मैंने मुसल्ले पर शुक्राना के नाफिल अदा किए। बिल आखिर रात अपने इख्तिताम को पहुंची। मस्जिद जमकरान में मुअज्जिन ने सुबह की अजान दी। हमने अव्वल वक्त में वही मुसल्ले पर सुबह की नमाज पढ़ी। अमाल ज़ियारत करने वाले सब लोग सुबह की नमाज पढ़कर जाने लगे। मैंने भी मुसल्ले पर शुक्र का सजदा अदा किया और मस्जिद से बाहर आ गई। मेरे वालिद मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने खुश होकर अपने बाबा जान को अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत करने का वाक़या तफसील से बताया। मेरे बाबा जान ने जब मुझसे ये वाक़या सुना तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे हाथों और आंखों पर बोसे दिए और मुझे बहुत प्यार किया और मुबारक दी। फिर मेरे बाबा जान मुझे साथ लेकर मस्जिद जमकरान के खुदाम के पास गए और उसे बताया कि मेरी बेटी को आज पहली बुध की शब भी अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत हो गई है। अब हम वापस इराक जाना चाहते हैं। मस्जिद जमकरान के खादम ने मुझे ज़ियारत का शर्फ हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मेरे बाबा जान ने खुदाम को बतौर हदिया कुछ रकम पेश की। फिर हम कोम अपने मकान पर आ गए। मालिक मकान को चंद दिन का किराया अदा किया और हम इराक रवाना हो गए और अपने घर वापस पहुंच गए। वो सैयदजादी रिवायत करती है कि मैं अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर अपने वालिद के साथ अपने घर इराक वापस पहुंच गई। मैंने अपनी वालदा, बहन भाइयों और दूर करीब के रिश्तेदारों, अपनी सहेलियों को खुश होकर इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ होने का वाक़या सुनाया। सब ने मुझे ये अजीम सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। चंद साल बाद मेरे वालिद ने मेरे चचा के बेटे से मेरी शादी कर दी। परवरदिगार आलम ने मुझे यके बाद दीगर 4 बेटे अता फरमाए। जब मेरे बेटे समझदार हो गए तो मैं उनको मस्जिद जमकरान में अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत का वाक़या सुनाती रहती थी। मैंने अपनी इस अजीम सादत को हमेशा याद रखा। बिल आखिर मेरे बेटे जवान हो गए। बहुत अरसा गुजर गया, मेरे वालिदैन वफात पा गए। मेरे बेटों की शादियां हो गईं। बाक़ज़ाए इलाही मेरा शौहर भी वफात पा गया। मैं अपने बेटों के साथ रहती थी। मेरी हसरत थी कि जिंदगी के आखिरी अयाम में एक मरतबा फिर मस्जिद जमकरान में जाकर अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत के लिए आमाल बजा लाऊं और इस पाक ज़ात के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करूं। मैंने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मुझे एक मरतबा ईरान के मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत पर ले जाओ और मैं फिर मस्जिद जमकरान में अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए आमाल ज़ियारत बजा लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो पाक ज़ात पहले की तरह ज़रूर करम फरमाएंगे। बिल आखिर मेरे अपने बड़े बेटे के साथ ईरान रवाना हो गई। ईरान की तमाम ज़ियारात से फारिग होकर जब हम मस्जिद जमकरान में पहुंचे तो देखा कि मस्जिद जमकरान पहले से बहुत ज्यादा वसी बन चुकी थी। रोशनी का पहले से ज्यादा इंतजाम हो चुका था। अब अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हो गया था। मेरे बेटे ने मस्जिद जमकरान के खुदाम को मिलकर अपने और मेरे नाम का इंदराज करवाया। पहले की तरह मस्जिद जमकरान के खुदाम ने अपने अपने मुसल्ले दिखा दिए। हमने फिर कुम शहर
शहर में रहने के लिए मकान किराए पर ले लिया। फिर पहली बुध की शब हम गुस्ल ज़ियारत करके मस्जिद जमकरान में पहुंच गए और हस्ब दस्तूर अपने आमाल में मसरूफ हो गए। हमने 3 बुध की रातें शब बेदारी और आमाल में गुजारी। जब चौथे बुध की शब हुई हम अमाल ज़ियारत में मसरूफ थे। जब सहरी का वक्त हुआ तो मैंने देखा कि पहले की तरह मस्जिद जमकरान के फानूस बुझ गए, अंधेरा हो गया। फिर अचानक मस्जिद नूर की रोशनी से मुनव्वर हो गई। शहनशाह मुअज्जम इमाम ज़माना मेरे सामने मौजूद थे। मैं अपने इमाम ज़माना को पहचान गई क्योंकि वही पाक पेशानी का पाक नूर, वही मुकद्दस और नूरानी पाक चेहरा मेरे सामने था जिसकी ज़ियारत का शर्फ मैं पहले हासिल कर चुकी थी। मैंने हस्ब साबिक अपने इमाम ज़माना के कदमों पर अपना सर रख दिया। फिर उठकर पाक दस्त मुबारक चूम लिए और अर्ज किया, आका अब तो आपके लिए मस्जिद जमकरान में बहुत ज्यादा लोग अमाल कर रहे हैं। मैंने सुना कि मेरे इमाम ज़माना ने मुझे फरमाया, अफसोस है कि हमारे लिए बहुत कम लोग आए हैं। मैंने अर्ज किया, आका ज़ियारत के लिए आने वालों से तो मस्जिद भरी पड़ी है। जब मैं काफी अरसा पहले आई थी तो बहुत कम तादाद थी, आज तो बहुत ज्यादा लोग आए हैं। मेरी बात सुनकर इमाम ज़माना ने फरमाया कि आओ मेरे साथ, चलो हम तुम्हें मुशाहिदा करवाएं, देखें कि हमारे लिए कौन आया है। वो सैयदजादी रिवायत करती है कि इमाम ज़माना मुझे हमरा लेकर मस्जिद जमकरान में बैठे हुए चंद लोगों के पास बारी बारी तशरीफ ले गए और उन्हें ज़ियारत का शर्फ बख्शा। फिर उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग यहाँ किस गर्ज से आए हो। किसी ने अर्ज किया, आका मैं तंग दस्त और बहुत मुफलिस हूँ, मेरे रिज्क में फरावानी अता फरमा। किसी ने औलाद तलब की, किसी ने अर्ज किया मेरी बीवी बीमार है। इमाम ज़माना जिसको ज़ियारत करवाते हैं वो अपनी अपनी गर्ज बयान करते और इमाम ज़माना उनकी मुश्किल हल फरमा देते। फिर शहनशाह इमाम ज़माना ने एक और शख्स को ज़ियारत का शर्फ बख्शा। वो शख्स उठकर इमाम ज़माना के कदमों पर गिर पड़ा और रोने लगा। शहनशाह मुअज्जम इमाम ज़माना ने उस शख्स से दरियाफ्त फरमाया कि तू यहाँ क्या गर्ज लेकर आया है। उस शख्स ने अर्ज किया, आका मैं और कुछ तलब नहीं करता, एक तो आपके पाक चेहरे अकदस की ज़ियारत का मुश्ताक था जो मुझे नसीब हो गई। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब तो अपनी तुलानी गैबत खत्म करके अपना ज़हूर फरमा दीजिए और अपने पाक जद अमजद पर होने वाले मजालिम का इंतकाम ले लीजिए और मुंतजरीन को अपने पाक घर की खुशियाँ दिखाइए और हमें तौफीक अता फरमाए कि आप जनाब की नुसरत करें। उस शख्स की बात सुनकर इमाम ज़माना ने फरमाया कि देखो इस भरी मस्जिद में यही एक शख्स हमारे लिए आया है, बाकी लोग अपने अगराज और मकासद लेकर आए हैं। जब हमें इस तरह चाहने वालों की मतलूबा तादाद पूरी हो जाएगी तो हमारा ज़हूर हो जाएगा। हमने इसलिए फरमाया कि हमारे लिए यहाँ कम लोग आए हैं। सैयदजादी से रिवायत है कि फिर इमाम ज़माना हमारी नजरों से गायब हो गए। मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे दूसरी मर्तबा फिर मेरे इमाम ज़माना ने अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शा। मैं अपने बेटे के साथ वापस इराक आ गई और मैंने अपने दिल में अहद किया कि जिंदगी भर सिर्फ इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ करती रहूंगी। अल्लाह जल या मुंतकिम में आले मोहम्मद, अल्लाह जल या वारिस खून हुसैन, अल्लाह जल या करीम मौला।